How are you all? I hope all of you are safe and doing your studies properly and regularly. As usual, on the digital platform provided by Halvasia Vidya Vihar run by Jan Kalyan Trust Kolkata, I, Mrs. Pooja Sharma, welcome you all again in my video classes. As you know, in our previous video, we read about a very lazy frog and the name of the frog was Fred. Yes, in the same way, in our unit number 5, we have one more lesson, lesson number 5. And the name of the lesson is Rip Van Winkle. Here, in this video, we will read about a very lazy fellow and the name of the man is Rip Van Winkle. It is the name of the lesson also, and this is the main character of the story. In fact, it is a story based on a very lazy fellow, and the name of the person is Rip Van Winkle. It is a story adapted means it has been taken from the legend of Rip Van Winkle. ये इसका मेन ये है इसका मेन जो ओरिजिनली जहाँ ये लिखी हुई है, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट है दैट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड एंड इज टेकन इन योर बुक. इट इज़ अ स्टोरी or a book written by Washington Irving. So, let us read the very interesting lesson and a very interesting story of Rip Van Winkle. So, let us start. This video has the explanation of the lesson as well as the word meanings and book exercise given on page number 87. So, not taking too much time, let us start. Rip Van Winkle. The story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. This is a story about whom? Rip Van Winkle. It is the main character of the lesson. And what are the qualities of this man? He is a good-natured man but lazy. But he is very lazy. Who goes away into the hills? वो क्या होता है? One day he goes into the hills and falls asleep. जो हम क्या जाता है, पहाड़ियों में जाता है और क्या करता है, सो जाता है. ये उसकी लेजीनेस को डिस्क्राइब कर रहा है. When he awakens after 20 years later, and one time when he awakens after 20 years sleep, Rip finds what did he find? क्या देखा उसने? That quite a few things have changed. That some things quite changed. उन changes को हम पढ़ेंगे इस lesson में. Okay, this is the face of Rip Van Winkle after 20 years. ठीक है, ये देखिए. Let us start. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. A little village was there near the Catskill Mountain. Catskill की जो पहाड़ियाँ हैं उनके foothills मीन्स होता है lower part of the hill. ये hill है और इस hill में यहाँ पे जो गांव बसे होते हैं ये foothills के गांव होते हैं. तो many years ago, बहुत साल पहले की क्या बात है, Catskill इन माउंटेन का क्या नाम है? Catskill माउंटेन्स के foothills में यहाँ पे एक छोटा सा क्या था, village. There was a village. In the village lived a simple, good-natured fellow, and in that village a very good-natured fellow lived there, and his name was Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. These are the qualities of that man. ये उसकी qualities हैं. क्या हैं? He was a kind neighbor. वो क्या था? अपने neighbors के लिए भी कैसा था? He was very kind, very gentle.
and ready to help anyone, and he is always ready to help anyone whether he is familiar to him or not. Everyone in the village liked him, and because of these qualities, everyone or every villager liked him very much, liked Rip Van Winkle very much. The children of the village shouted with joy whenever they saw him. और बच्चे भी क्या थे, क्योंकि वो एक क्या था, गुड नेचर्ड फेलो था. दैट्स वाई चिल्ड्रन ऑफ द विलेज ऑलवेज शाउट विद जॉय वेन एवर दे सी हिम. जब भी वो उसको देखते वो चिल्लाते. बिकॉज क्यों चिल्लाते? ही प्लेड विद देम. बिकॉज रिप वैन विंकल ऑलवेज प्लेड विद द चिल्ड्रन. ही taught them to fly kites, and he also and the children also learnt from him. क्या सीखते उससे? To fly kites and shoot marbles. And how to shoot marbles, कंचे खेलना, flying kites, ये सब किससे सीखते? Rip Van Winkle से. And told them long stories, and Rip Van Winkle told the children very long stories. तो इसलिए अब ये सारे काम बच्चे उसके साथ एंजॉय करेंगे तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था. ये देखिए कितने फ्रेंडली हैं ये रिप वैन विंकल के साथ. दे ऑलवेज enjoyed the company of the good-natured fellow Rip Van Winkle. Next, the only problem with Rip was that he was very lazy. Lazy means idle. क्या था वो? आइडल था. आइडल, लेजी, जो किसी काम का नहीं होता, जो कोई काम नहीं करता, लेजीली बिल्कुल आराम से पड़ा रहता है विदाउट एनी वर्क. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. अब कहता है कि वो इतना लेजी था कि ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म ऑल्सो. वो अपने फील्ड में भी, फार्म में भी काम नहीं करता था. एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. आइडल्ड अवे टाइम का मीनिंग होता है जस्ट वेस्टेड हिज टाइम. अपने टाइम को वेस्ट करता रहता था. हिज फेंसिस, फेंसिस होता है बाउंड्री वॉल्स. ऐसे खेत देखे होंगे आपने, और खेत की जो ये बाउंड्रीज होती हैं ये होती हैं फेंसिस. वर फॉलिंग टू पीसेस. अब इनके क्या हुए रहते? टुकड़े हुए रहते. टूटी रहती है लेकिन फिर भी ये कभी इनको रिपेयर करने की नहीं सोचता. हिज काउज वॉज गोइंग एस्ट्रे. एस्ट्रे मीन्स होता है अवे फ्रॉम द पाथ. मीन्स उसकी गायें भी जो थी, उसकी काउ थी, जब वो क्या करती? एस्ट्रे, अवे फ्रॉम द. समटाइम्स द काउ वेंट अवे फ्रॉम द राइट वे. सही जगह से, सही रास्ते से भटक जाती थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. वीड्स होते अनवांटेड प्लांट्स, जो बेकार के ऐसे प्लांट्स जो खेत में ज़रूरी नहीं होते हैं, वो भी उगे रहते उसके फार्म में. रिप्स, और रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट कंपेनियन? कॉन्स्टेंट मीन्स होता है स्टडी, रेगुलर, फिक्स्ड, और जो बहुत नियर, पास रहता है उसके. कंपेनियन होता है पार्टनर, और उसका सबसे जो फिक्स्ड पार्टनर था वो कौन था? वॉज हिज डॉग. उसका पेट डॉग था. एंड द नेम ऑफ द पेट डॉग वॉज वोल्फ. वोल्फ था. ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द डॉग, और व्हाट वॉज द नेम ऑफ रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन. तो आपको याद रखना है वोल्फ. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. And to avoid the duty, और काम से बचने के लिए वो क्या करता? He would walk away into the forest with his dog. अपने चला जाता जंगल में अपने डॉग के साथ. किस लिए? To avoid the duty, काम से बचने के लिए. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. और एक दिन क्या किया रिप ने? He walked away and away, and at last reached the highest part of the mountain or the hill. और लास्ट में वो हाईएस्ट पार्ट, पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है. यहाँ पे ये सब यहाँ पहुंच जाता है. It was late in the afternoon. And what was the time? It was late in the afternoon. दोपहर में पहुंचता है. When he reached there, and when he reached at the top of the mountain, tired after his long climb,
he got tired after his long journey to the mountains. कि वो इतना ऊपर चढ़ा तो उससे क्या हो गया? He got tired. He lay down and began daydreaming. Daydreaming means होता है to dream in the daytime. अब वो क्या करता है? He laid there on the mountains. He laid there and he began to और he started daydreaming. दिन में सपने देखना और शुरू कर देता है. It was soon evening and soon it became evening and he realized it would be night by the time he reached his village. And he realized, he understood that क्या समझा उसने? If he started to climb down from the mountains, it would be night by the time when he reached the village back. जब वो घर पहुंचेगा तो क्या हो चुकी होगी? रात हो चुकी होगी. तो वो क्या सोचता है? Suddenly, और इतना ही जब वो सोच ही रहा था तभी उसको क्या सुनाई दिया? Suddenly he heard a voice calling out. He heard a sound and वो साउंड कैसी थी? Calling out. वो क्या बोल रही थी? Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. उसको अपना ही नाम सुनाई दिया. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard. अब उसने क्या देखा? He looked around himself. अपने चारों तरफ देखा and he noticed a short old man. उसने एक आदमी देखा और वो कैसा था? What was the quality? He was very short. He was old man. उसने ये देखा. With thick hair. अब ये भी आपसे क्वालिटीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि what were the qualities और what were the features of that man. तो आप बताएंगे he was a short and old man with thick hair. उसके बहुत गहरे गहरे से बाल थे. And a grizzled beard. Grizzled होता है grey haired. Means उसकी दाढ़ी भी क्या हो गई थी? थोड़ी सफ़ेद हो गई थी. बूढ़ा था तो क्या होगी? सफ़ेद ही होगी. Walked towards him and he was walking towards him and he was just coming towards Rip Van Winkle. वो उसकी तरफ आ रहा था. With a barrel. Barrel होता है a wooden container. एक लकड़ी का ऐसा कंटेनर जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं. ये He made signs to help him carry the barrel. अब उसने साइन क्या बनाया? साइन मीन्स होता है सिंबल. उसने एक ऐसा इशारा किया. किसको? ये ही किसके लिए है? ओल्ड मैन के लिए. एंड द ओल्ड मैन मेड अ सिंबल टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. उसने किसको साइन किया? सिंबल किसको किया? इशारा किया रिप वैन विंकल को टू कैरी द बैरल, कि उस बैरल को उठा दे. रिप हरीड टू हेल्प बिकॉज रिप वॉज अ वेरी हेल्पिंग पर्सन. तो हेल्पफुल था ही वो हमेशा. ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन. किसी को भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था. तो उसके गुड नेचर के कारण उसने क्या किया? रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मीन्स होता है अननोन पर्सन. मीन्स जो आपके लिए नया है. दैट इज नॉट फेमिलियर और दैट इज अननोन. तो वो फिर भी क्या करता है? वो अननोन है लेकिन वो उसके लिए हरीड टू हेल्प. ही रश्ड टू हेल्प हिम. रश्ड मीन्स होता है भाग लेता है, जल्दी से भाग लेता है. हु कॉट हिज हैंड टाइटली एंड द ओल्ड मैन कॉट रिप वैन विंकल्स हैंड वेरी टाइटली. और जैसे ही वो उसको बैरल को पकड़ने के लिए, उसको उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो ओल्ड मैन उसको क्या कर लेता है? रिप वैन विंकल का हाथ जोर से पकड़ लेता है. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन. और अब वो उसको पकड़ करके कहाँ ले जाता है? टुगेदर दे रीच्ड बोथ रिप वैन विंकल एंड द ओल्ड मैन वेंट टू अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन. वहाँ भी कुछ अलग अलग दिखने वाले से लोग थे. एंड दे वर प्लेइंग 9 पिन्स. और वो सब क्या खेल रहे थे? 9 पिन्स खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड दे वर ड्रेसिंग इन द सेम वे. उन्होंने एक तरह के कपड़े, एक सेम तरीके से कपड़े पहन रखे थे. एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. और उन सब की क्या थी? जो बियर्ड थी वो क्या थी? वेरियस शेप्स की थी और कलर्स की थी. उनकी शेप, बियर्ड के शेप अलग थी और कलर्स अलग थे. बाकी उनका ड्रेसिंग सेंस सेम था. इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम एंड इवन दे वर प्लेइंग अ गेम नेम्ड 9 पिन्स. 9 पिन्स वो खेल रहे थे. फिर भी
देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। देयर फेसेस वर वेरी सीरियस, बहुत सीरियस मूड में वो खेल रहे थे। एंड देयर वॉज साइलेंस, एंड देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस वॉज देयर, और बिल्कुल चुप था वहाँ पे सब कुछ। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स। ये होता है 9 पिन्स गेम। और सिर्फ वहाँ पे इतना, ये देखो सब कितने सीरियस मोड में खेल रहे हैं। इनकी ड्रेसेस देखिए, सेम वे में ड्रेस पहनी है सबने, है ना। और बियर्ड देखो सबकी कलरफुल है और शेप अलग है, बाकी सबका ड्रेसिंग सेंस सेम है। इट इज़ बैरल, वुडन कंटेनर। ये देखिए, लुक एट इट वेरी केयरफुली, इट इज़ बैरल, वुडन कंटेनर। ये वुडन कंटेनर वाला वो ओल्ड मैन है, और ये सबकी ड्रेसिंग सेंस सेम है, लेकिन बियर्ड अलग कलर की है, ठीक है। एंड दे वर प्लेइंग 9 पिन्स इन अ वेरी सीरियस मूड। और यहाँ पे इतना ज़्यादा साइलेंस है कि सिर्फ जो 9 पिन्स की बॉल की है वो सिर्फ आवाज़ आ रही है। विच इकोड, इकोड मीन्स होता है रिफ्लेक्टेड साउंड। जैसे आप पहाड़ों में जा कर के जोर से बोलोगे सुनो, तो आपको रिप्लाई में भी क्या सुनेगा, वापस वो आवाज़ गूंज करके आपके पास आती है ना, दैट इज कॉल्ड इकोइट। इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और जो बॉल्स की आवाज़ थी वो इको होकर के क्या लग रहा था, इट वॉज मेकिंग अ नॉइस लाइक अ थंडर, एक थंडर के जैसे वो आवाज़ क्रिएट कर रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की बात है, यहाँ पे फिर से कंपेनियन बोला है, लेकिन कांस्टेंट कंपेनियन नहीं बोला है। इट मीन्स कंपेनियन यहाँ पे कौन है, द ओल्ड मैन। यहाँ पे कौन है, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन हो गया है उसका कंपेनियन, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ आया है। रिच दैम, जब वो वहाँ पे उन ओल्ड लुकिंग मैन के पास पहुँचते हैं, दे स्टॉप्ड प्लेइंग। ऑल द ओल्ड लुकिंग मैन स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड होता है फिक्स्ड लुक, टकटकी लगा कर देखना। किसके ऊपर देखते हैं, एट रिप वैन विंकल को देखते हैं विद अ फिक्स्ड गेज। गेज मीन्स होता है स्टेयर, टकटकी लगाना। फिक्स गेज के साथ, फिक्स लुक के साथ वो किसको देखते हैं, रिप वैन विंकल को। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड मीन्स टेरिफाइड, और ऐसे ऐसे लोगों को देख करके जो उसको घूर रहे थे, रिप वैन विंकल गॉट वेरी टेरिफाइड, बहुत डर जाता है। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. अब क्या करता है, उसका जो कंपेनियन है यानी कि द ओल्ड लुकिंग और द ओल्ड मैन एम्प्टीड, वो उसको खाली कर देता है। किसको, बैरल में जो कंटेंट्स थे, कंटेंट्स में तो होता है द इंग्रेडिएंट्स, जो उसके अंदर जो मटेरियल था उसने क्या किया, ही एम्प्टीड, ही ड्रॉप्ड और पोर्ड द कंटेंट्स इनटू द ग्लासेस, उसने ग्लासेस में डाल दिया। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसने क्या किया, ही ऑफर्ड दैट ड्रिंक टू रिप, उसने रिप को वो ऑफर किया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विद फियर, और रिप ओबेड द ओल्ड मैन, क्यों किया उसने, बिकॉज ही वॉज शूकिंग, ही वॉज शिवरिंग विद फियर, कपा रहा था डर के मारे। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। अब क्योंकि वो क्या था, ही वॉज वेरी थ्रस्टी, रिप वॉज वेरी थ्रस्टी, सुबह से निकला था वो, देखो माउंटेन क्लाइंबिंग भी उसने की, वहाँ के सो भी गया। देन ही गॉट वेरी थ्रस्टी, तो उसने क्या किया, ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस ऑफ द ड्रिंक, और बहुत ज़्यादा उसने वो पी लिए वो ड्रिंक। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और क्या करता है, एंड फाइनली ही गॉट अस्लीप, सो जाता है वो गहरी नींद में। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. And when he waked up, जब वो उठता है, he found himself, कहाँ पाता है वो अपने आप को, that he was at the same place where he had first met the old man, where he met the old man for the first time, जब वो old man को जहाँ पे मिला था, ये देखो यहाँ पे वो उसको मिला था, और वो यहाँ पे अपने आप को पाता है। ही रब्ड हिज आइज, अपनी आँखों को ऐसे वो रब करता है, स्ट्रोक करता है। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, एंड इट वॉज अ वेरी ब्राइट
सनी मॉर्निंग, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारी सी सुबह उसको दिखती है. श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप, एंड रिप थॉट दैट ही वॉज नॉट स्लीपिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वहाँ पे वो बहुत देर से नहीं सो रहा था. वो ऐसे अपने आप से बातें करता है. ही लुक्ड अराउंड फॉर वोल्फ. अब वो वोल्फ कौन है? उसका स्टडी कंपेनियन, कांस्टेंट कंपेनियन. एंड ही वॉज लुकिंग फॉर हिज पेट डॉग, बट ही वॉज नोवेयर. बट हिज पेट वॉज नोवेयर नियर हिम. रिप विसल्ड फॉर हिम. देन उसको बुलाने के लिए उसने क्या किया? रिप विसल्ड फॉर हिम. उसने उसके लिए सीटी भी बजाई. वोल्फ वोल्फ. ही देन शाउटेड एंड ही कॉल्ड हिज पेट डॉग बाय कॉलिंग हिज नेम. अपना उसका नाम बुला करके उसने भी चिल्लाया. बट नो डॉग वॉज टू बी सीन. बट ही वॉज नॉट एबल टू सी हिज डॉग. वेयर हैज दिस डॉग गॉन? ही मटर्ड. मटर्ड होता है स्पोकन इन अ लो वॉइस, अपने आप में बातें करना, धीरे धीरे बुदबुदाना. तो वो क्या करता है? वेयर हैज दिस डॉग गॉन? ही मटर्ड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से ही बातें करता है ये. ही बिगेन टू डिसेंड. डिसेंड होता है, असेंडिंग होता है ऊपर चढ़ना, और डिसेंड होता है नीचे उतरना. तो क्या करता है? टू मूव डाउन. ही बिगेन टू मूव डाउन टू द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, टू गो बैक टू हिज ओन होम. वो पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर देता है अपने गांव में जाने के लिए. ठीक है, अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी becomes very interesting. अब हो जाती है बहुत इंटरेस्टिंग. As he neared the village, he met a number of people, and when he reached near his own village, he met many people. बहुत लोगों को मिला. But he did not know any of them. But he did not recognize any of them. उनमें से किसी को भी वो पहचान ही नहीं पाया, ना वो जानता था. The villagers also stared at him equally surprised. Amazed होकर के, surprisingly they were looking fixedly at Rip Van Winkle also. अब वो भी उसको ऐसे strange way में देख रहे थे. Who is this man? said one. And one of the villagers said that, who is this man? कौन है ये? I have never seen him before, said another. And another villager or another neighbor said that, I have never seen him before. मैंने तो देखा ही नहीं इसको पहले कभी. Look at his long white beard. और उनमें से वो दूसरा क्या बोलता है? Oh, just look at the long white beard and his wrinkled face. Wrinkled होता है creased on screen. ऐसे जो एज बड़ी हो जाती है तो हमारे फेस पे क्या हो जाते हैं? ऐसे रिंकल आ जाते हैं. तो वो क्या कहता है कि इसके रिंकल्ड फेस और इसकी वाइट बियर्ड को तो देखो जरा. ऑन हियरिंग दिस, और ये सब बातें सुन के, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन. स्ट्रोक्ड होता है रब जेंटली. रोक अपनी चिन को जेंटली, बहुत प्यार से इसे सहला के देखता है. एंड टू हिज एस्टॉनिशमेंट एंड हिज सरप्राइज वॉज शुड बी नोटिस्ड. उसका देखना बहुत ऐसा था, कितना वो सरप्राइज हो गया था. ही फाउंड हिज बियर्ड हैड गॉन अ फुट लॉन्ग. और क्या नोटिस करता है? ही नोटिस दैट हिज बियर्ड हैड ग्रोन वेरी लॉन्ग. और कितनी लंबी? अ फुट लॉन्ग. 1 फुट से भी लंबी हो गई है. फुट. अ फुट लॉन्ग. ओके, अ फुट लॉन्ग हो जाती है. एंड इट वॉज ऑल वाइट. एंड वट वॉज द कलर ऑफ हिज बियर्ड? हिज बियर्ड became all white. बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है उसकी दाढ़ी. An old man and old women walked up to him. अब वो क्या कर, एक old woman उसके पास आती है, came to him and looked at his face, and he observed or noticed his face very carefully for a moment. 1 मिनट के लिए देखती है. Then he exclaimed, then he shouted or cried loudly. Exclaimed means cried loudly. And then he cried loudly, it was Rip Van Winkle. और क्या कहती है? Oh, it is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. क्योंकि वो उसकी क्या थी? नेबर. ये है वो ओल्ड वीमेन जो इसको देख करके
रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, और वो क्या कहती है, वो वेलकम करती है किसका, रिप वैन विंकल का। वेलकम होम अगेन माई ओल्ड नेबर, कि अरे मेरे ओल्ड नेबर, आई वेलकम यू अगेन टू योर ओन होम। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, और वो उसको बताती है कि वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, कहती है कि इन 20 ईयर्स तक वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। इट मीन्स अब पता चला कि वो तो कितने सालों के लिए गायब हो गया था, सो गया था, 20 ईयर्स, 20 सालों तक वहीं सोया रहा था। अब एंड दिस इज द स्टोरी अडॉप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल। ये मेन स्टोरी का नाम है रिप वैन विंकल, जो किसने लिखी है, वॉशिंगटन इरविंग, और इसमें से अडॉप्ट किया है एक पार्ट और आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दे दी है। नाउ इट इज़ टाइम टू डू न्यू वर्ड्स, और न्यू वर्ड्स लेसन नंबर 5 में कुछ अलग तरीके से फनी वे में दे रखे हैं। सो लेट अस डू विद फन विद न्यू वर्ड्स। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी ऑल्सो। आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं, मैंने लेसन को एक्सप्लेन करते हुए भी आपको मीनिंग्स बता दिए हैं। आइडल्ड अवे मीन्स होता है वेस्टेड, रेस्टेड और एडमायर्ड। नहीं, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, रिप वैन विंकल आइडल्ड अवे, जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, तो आइडल्ड अवे मीन्स वेस्टेड। कॉन्स्टेंट, कॉफी, कंस्ट्रक्ट और स्टडी, हमने बताया स्टडी, फास्ट और नियर, क्लोज। कंपेनियन का मीनिंग हमने बता दिया, पार्टनर, तो हम पार्टनर को सर्कल कर देंगे। रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू सेट फ्री और रियल, नो, टू अंडरस्टैंड, सो वी विल सर्कल द वर्ड टू अंडरस्टैंड। डिसेंड मीन्स क्या होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स नीचे उतरना, टू मूव डाउन। बैरल, अ वुडन कंटेनर। कंटेंट्स, टू बी हैप्पी, द इंग्रेडिएंट्स, द इंडेक्स ऑफ द पेज। इंडेक्स ऑफ द पेज को भी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटेंट हमने किसको कहा है, इंग्रेडिएंट्स का। ओके, किसी चीज़ में जो चीज़ें मिलाते हैं हम, दैट आर इंग्रेडिएंट्स। जैसे खीर हम बनाएंगे तो उसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, दूध डालेंगे, चावल डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और शुगर डालेंगे, ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। और ये इंग्रेडिएंट्स वर्ड हमने किस में भी पढ़ा था, यस, द वंडरफुल वेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स। यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ग्रीजल्ड, एस्टोनिश्ड, फुट हिल्स, स्ट्रॉक्ड एंड फेमिलियर। नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन, क्या कहेंगे, वेरी गुड, फुट हिल्स। फर्स्ट वन इज 1 2 3 4 and 5. You will write numberings in your books in the same way, और यहाँ पे आप ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3 4 and 5. With grey hair को हम क्या कहेंगे, grizzled, very good. Third one is to rub gently, strocked, very good. To be very surprised, हमने कहा था लास्ट में पढ़ा, हिज एस्टोनिशमेंट है ना, एस्टोनिश्ड, इसको हमने लिखा 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया 4th नंबर पे। नॉन टू यू, आपका कोई नॉन है उसको आप क्या कहेंगे, फेमिलियर, तो फेमिलियर हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे। वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली अगेन एंड एंजॉय द स्टोरी, एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स of the lesson with the help of these exercise given on page number 86, okay, 87 sorry। और इन दोनों वर्ड मीनिंग्स की एक्सरसाइज को आप लर्न करेंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ द लेसन एंड वर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन which will you write in the notebook also. Till then, stay home, stay safe